Okay, so we did in the last class we did about the probability density function and the distribution function, conditional probability for the joint random variables, right? So we have seen कि अगर मेरे पास random variable x है, right? Then we know this is known as the, अगर ये single variable है तो we say PDF, simple PDF. Otherwise we say marginal density. And if there is random variable y, then this is the marginal density of y or the PDF of y, probability density function or probability mass function अगर मेरा random variable continuous है. So now the question arises, what if, well, now the question arises, what if I have some function of x, say I have a random variable x, and then using that random variable x I create some function. Say suppose मैं dice roll कर रही हूँ and जैसे dice roll हो रहा है मैं note कर रही हूँ कि अगर head आ रहा है तो मैं मान रही हूँ कि number 0 है. So say suppose x is a random variable, x takes value 0, so x takes value 0 if we have head and x takes value 1 if we have tail. तो अब अगर सपोज मैंने डाइस रोल किया तो सपोज टेल आया तो मेरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर मैंने डाइस रोल किया फिर से टेल आया फिर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर मैंने डाइस रोल किया सॉरी कॉइन को टॉस किया फिर हेड आया तो फिर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0. तो इफ यू सी वी डोंट नो कि एक्स की वैल्यू क्या बनेगी नेक्स्ट टॉसिंग में, तो दैट इज द रीजन दिस इज अ रैंडम वेरिएबल. अब इस एक्स को यूज करके मैंने एक और फंक्शन बना लिया y. So now here say y is what? Y is x cube or you say x by 5. So if you see जब x वैल्यू 1 लेगा तो y की वैल्यू 1 by 5 हो जाएगी, जब x 0 लेगा y की वैल्यू 0 हो जाएगी. So here y is what? Y is the function of x, where x is some random variable, so obviously y is also a random variable. So I can say in general y can be any function of x. So now the question arises, is it possible कि अगर मुझे x की probability density function या probability mass function पता है तो from using that formula only can I find the probability density function or probability mass function of y? Answer is yes, right? So these are the function of the random variables and let us see how using the probability density function of x we can find the probability mass function of y. So first we will do the method for one dimension random variable. Then the same technique can be applied to 2-dimensional or any dimension random variables, right? So let us see. So this is transformation of 1-dimension random variable. Suppose हमारे पास एक random variable x है, whose PDF we know. So the PDF of x is given. Now what we want to find the PDF of new random variable y, where y is what? Y is some function of x, right? So this theorem gives you the method to find the PDF of a function of x. So let x be a continuous, again I repeat, whatever proof we are doing for the continuous case follows similarly for the discrete case. So that is the reason we don't prove both the cases. And since continuous case में proof करना आसान होता है, इसलिए हम continuous case के लिए proof कर देते हैं हर case में. So let x be a continuous random variable. तो ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे continuous लिखा है तो this result is only for continuous, right? So this can follow for any random variable. Let x be a continuous random variable with probability density function fx. Let y is equal to gx be a strictly monotonic. So when I'm saying strictly monotonic means या तो वो strictly increasing function है या वो strictly decreasing function है of x, right? Where gx is differentiable. Obviously अगर एक function differentiable होता है तो वो continuous भी होता है for all x. Then the PDF h, I should write here y, and the PDF h of random variable y is given by, so h of y, right? So this is the PDF of y, where y is function of x. So this is what? PDF of x into mod of dx by dy. So please, PDF of y is what? PDF of x into dx by dy का mod, where what is x? X was the random variable जिसकी help से हमने function y बनाया था. So proof is very easy, right? Let us now suppose there are two cases. So either it will be strictly increasing function or it will be strictly decreasing function. Let us take first case.
where y is equal to gx is strictly increasing function. तो हमें पता है increasing function के लिए dy by dx is greater than 0. This is the reason यहाँ ऊपर mod आ रहा है, because हमें पता है कि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. So now y is a strictly increasing function, so therefore dy by dx will be greater than 0. Right? Now let us find the distribution function of y. अगर आपको याद हो distribution function of x क्या था? Distribution function of x था capital F of x. So we know capital F of x was what? Capital F of x was the probability that your capital X is less than or equal to x. Right? So here if you see the distribution function of y. So the distribution function of y is what? So हमें पता है distribution function of y क्या होता है? So this is hy, right? So this is hy. So we know by definition ये क्या बन जाएगा? This is the probability that y is less than or equal to y. So यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. So probability capital Y is less than or equal to small y. अब हमें पता है capital Y is what? Capital Y is function of x. तो हमने वैल्यू डाल दी. So gx is less than or equal to y. तो अगर आप यहाँ से देखो x को एक तरफ लेते हैं, g को उधर ले जाते हैं, तो जब हम g को उधर लेके जाएंगे तो g इनवर्स बन जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल x इज लेस देन और इक्वल टू g इनवर्स ऑफ y. तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल x इज लेस देन और इक्वल टू g इनवर्स ऑफ y. तो अगर आप इस वाली डेफिनेशन को और इस वाली डेफिनेशन को कंपेयर करो तो ये क्या बन गया? सो दिस इज नथिंग बट कैपिटल F ऑफ, अब स्मॉल x की जगह क्या आ जाएगा? g इनवर्स ऑफ y. So you see capital H of y क्या बन जाएगा? This is f of x of g inverse of y. बट हमें पता है y क्या था? y was g of x. y was g of x. तो अगर मैं g inverse of y निकालूं यहाँ से तो g inverse of y कितना बन जाएगा? x. So ये क्या बन गया? h of y is same as f of x. Right? So from here अब मुझे पता है मुझे क्या निकालना है? मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है. ये तो मैंने कैपिटल फंक्शंस निकाल लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लिए, बट हमें स्मॉल पीडीएफ चाहिए. हमें पता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स कैसे निकलता है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव. तो अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लूं तो मुझे स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल जाता है. सो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. सो अगर मैं सेम मेथड यहाँ पे लगा दूं तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड्स को, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल एच ऑफ वाई इज नथिंग बट कैपिटल एच ऑफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. राइट? अब इसका एच वाई की वैल्यू डाल देते हैं. एच वाई की वैल्यू क्या है? एफ एक्स. तो इफ यू सी यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा तो स्मॉल एच ऑफ वाई कितना हो जाएगा? अब ये एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई. अब हमें पता है अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल एफ ऑफ एक्स. तो यू सी इन दिस केस व्हाट वी गेट? एच वाई ऑफ वाई. सो पीडीएफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई. ये कब आया? जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था. ऐसे ही जब हम केस लेंगे व्हेन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा. So proof is totally the same. So here the second case is when this is monotonically decreasing function. So by definition capital H of y क्या हो जाएगा? Probability that y is less than or equal to y. Again y की वैल्यू हमने डाल दी. ये क्या हो गया? gx. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब जब हम इनवर्स लेंगे, अब हमें पता है जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनवर्स लेते हैं, inverse of decreasing function, so the equality changes, right? So here if you see what will happen, so here x will be greater than or equal to, जब हम inverse लेंगे तो greater than or equal to आ जाएगा g inverse of y, right? So if you see, so now this is what probability that x is greater than or equal to g inverse of y. but हमें पता है हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें लेस देन और इक्वल टू होता है, तो हम कॉम्प्लीमेंट वाली स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g इनवर्स ऑफ y, ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 माइनस
the probability that x is less than or equal to g inverse y. Rest all is same. So if you see ये क्या बन जाएगा 1 minus, so this is what, this is f of x of g inverse of y, और हमें पता है g inverse of y कितना होता है x, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1 minus f of x. फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे, so let us take derivative on both the sides. So h small h क्या हो जाएगा, कैपिटल H का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, चेन रूल लेंगे आएंगे तो क्या आ जाएगा d by dx ऑफ दिस फंक्शन. तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इफ यू सी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन साथ में आ जाएगा, सो माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, राइट. सो हेयर इफ यू सी यहाँ पे माइनस आ गया, पीछे प्लस आया था, तो अगर हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, एच ऑफ वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, राइट. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स. सो रिमेंबर फंक्शन वाई एक्स का होता है बट हमें डी एक्स बाई डी वाई लेना है, राइट. सो दिस इज जस्ट if x is a random variable, find the CDF. So ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला किया है that was for the PDF. So right, these are small questions. आप definition से भी निकाल सकते हो. If x is a random variable, find the CDF of y is equal to x plus a. Right? We will apply the same definition. Right? Right? So let G be a CDF of y. Let G be a CDF of y. Right? Then we know in general what will be G of x. हम इसको x की terms में रखेंगे. In general, what will be G of x? अब हमें पता है इन जनरल g ऑफ y कितना होता है, इन जनरल g ऑफ y कितना होगा, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल Y इज लेस देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल Y इज लेस देन और इक्वल टू y. तो अगर मैं यहाँ पे gx निकाल रही हूँ, यू विल सी हाउ दिस विल हेल्प. सो gx कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल Y इज लेस देन और इक्वल टू x. अब कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल Y कितना था x प्लस a, तो a इधर चला गया तो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस a. तो ये देखो सब कुछ x में आ गया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में gx लिखा था. दिस इज x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस a. सो यू सी दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, और अब स्मॉल x की जगह क्या है, x माइनस a. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. So we can just apply the definitions. So you see. Similarly, what is second part, right? What is second part? Second part is y is equal to x minus b. So same way this will work, right? Same way. अब constant change हो गया. So now if you see, let us do this part. Let us do fourth part. So fourth part is what? Y is equal to x square. So y is equal to x square. Again, what will be g of x? G of x कितना बन जाएगा? G of x will be probability that y is less than or equal to x. अब y की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर. सो इफ यू सी x स्क्वायर, अगर मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा, सो कैपिटल X विल बी, एक बार पॉजिटिव अंडर रूट आ जाएगा, एक बार नेगेटिव अंडर रूट आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी माइनस अंडर रूट x एंड प्लस अंडर रूट. सो इफ यू सी माइनस अंडर रूट x, इधर भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट x. सो व्हाट विल हैपन, सो x लाइज बिटवीन माइनस अंडर रूट x एंड प्लस अंडर रूट x. राइट. सो इफ यू सी हमने प्रॉपर्टी करी थी, अगर जब हमने 4 प्रॉपर्टीज करी थी, सो प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन a टू b, राइट. सो यू सी दिस इज नथिंग बट कैपिटल f ऑफ b, तो b की जगह यहाँ पे क्या है, अंडर रूट x माइनस कैपिटल f ऑफ a. सो आई एम रिमाइंडिंग यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी. हमने 4 केसेस किए थे अगर आपको याद हो, राइट. सो दिस वाज x लाइज बिटवीन a टू b, इंटरवल्स हमने ऐड कर दिए थे, राइट. This is nothing but what, capital F of B minus capital F of, अगर अपने PDF के केस में निकालना है तो हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं. So you see this one. So this will be what, capital F of under root x minus F of minus under root x, right? Okay, let us do. So this was all about the single variable. तो single variable में result is simple. Now जो question आता है वो joint variable में से आता है, right? So before we take up the question, let us do a theorem. So what this theorem says, the joint PDF. So say suppose you have 2 random variables. So single variable के केस में आपके पास एक random variable था, अभी हमारे पास 2 random variables है x and y. उनकी help से हमने 2 random variables और बना लिए u भी. So u is also some function of x and y. V is also some function of x and y. So u is some function of x and y.
So V is also some function of x and y. Right? So now the question is कि अगर मुझे joint PDF पता है x और y का, so is there any possibility that I can find the joint PDF of both u and v? Right? Answer is yes, we can find. Right? So the next theorem. So the next theorem gives you this answer, right? So let us see what is this next theorem. So this theorem says the joint PDF. So now the joint PDF GUV, the joint PDF GUV, right? So the joint PDF GUV, where u comma v, of the transformed variables u and v. So u and v are the variables जो हमने x और y को use करके बनाए हैं. So you see, u just for instance x और y random variables हैं. So suppose u is what? U is x plus y, and say v is some e raised to power x. So हमने x और y को use करके कोई दो variables u और v बनाए हैं. Now the question is, can I find the joint distribution of u and v? So answer is yes. अगर G is joint distribution of u and v, then what is G? Then G is nothing but पीछे क्या आया था? PDF of f into mod of dy by dx. अब यहाँ पे क्या है? टू रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो क्या आ जाएगा? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ f x एंड y इनटू, हमें पता है जब दो एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स हैं तो डेरिवेटिव्स की जगह क्या आ जाता है? जैकोबियन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? mod j. फिर व्हाट इज mod j? mod j is the Jacobian of the transformation, and f of xy is nothing but the joint distribution of both x and y. Right? तो वही फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u and v is nothing but the joint distribution of x and y into, वहां पे क्या था? mod of dx by dy. यहाँ पे क्या हो जाएगा? mod of the Jacobian. Right? So let us see the proof. Let us see the proof. So the proof says, now the probability, now let us see the proof. So we know probability that x is greater than x and less than x plus dx, right? So let us consider this probability that x lies between small x and x plus dx, and capital Y is greater than y plus dy. अब these are just random variables, चाहे आप capital X लिखो चाहे आप capital U लिखो, they are one and the same thing, right? So this is same as probability. अब x की जगह हमने U लिख दिया, right? And यहाँ पे capital X की जगह U लिख दिया. Again, जहां जहां x था वहां u लिख दिया और जहां जहां y था वहां हमने v लिख दिया. So I mean, you write f of x or you write f of u, they are the same thing. They are just the name change, right? So if you see what is this thing, if you see what is this thing, अगर आपको याद हो हमने जॉइंट का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी करवाया था, राइट? इफ यू रिमेम्बर, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन करी थी, तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, हमें क्या चाहिए? अगर हमें चाहिए दैट माय x लाइज बिटवीन x and x plus dx or delta x. So this dx is very small. This dx is very small. So this is dx. So this limit as, actually dx नहीं लिखते हैं, let us write delta x. जब हमें पता है जब delta x tending to 0 होता है तो वो dx बच जाता है, right? So let me write delta x only. So this is delta x. और denominator में भी delta x. So we know this is nothing but continuous case में, you see this is delta x and delta x is very small. So delta x is tending to 0. So obviously this will give you the probability at x. So x lies between x and x plus delta x, and delta x is very very small. So this is nothing but the probability at the point x. But जैसे मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस में हम x पे नहीं जाते एग्जैक्टली, तो x के नेबरहुड में है हम, और हमें पता है तो यहाँ से अगर मैं इस चीज को इधर भेज दूं, डेल्टा x को इधर भेज दूं, तो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? fx into delta x. और हमें पता है जब लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 होता है तो डेल्टा x किसके इक्वल बन जाता है? dx के इक्वल. तो यू सी ये पूरे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? दिस इज fx into dx. ऐसे ही अगर आप यहाँ देखो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, सो दिस इज वन, दिस इज सेकंड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f की जगह जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा f of xy, और साथ में क्या आ जाएगा? dx dy. ऐसे यहाँ पे क्या आ गया? g of uv, और साथ में क्या आ गया? du dv. राइट? सो दैट्स इट. इफ दिस इज क्लियर, वी आर डन विद द प्रूफ. तो यही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है प्रूफ में, राइट? ऊपर ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये मैंने टू वेरिएबल्स में डिस्कस किया है.
right? So this you can see. So now that's it, we are done with the proof. So if you see, अब यहाँ से क्या आ गया, what is g of uv, du dv. So now हमारे पास क्या था, if you see यहाँ पे हमने लिखा था f of xy dx dy is f g of uv du dv. अब बेटा अगर आप ऐसे ही देखो, let us send us du dv on the denominator. So dx dv over du dv, f of xy is equal to so g of uv कितना हो जाएगा, f of xy dx dv over du dv. तो बेटा अगर आपको याद हो, हम जब निकालते थे, जैकोबियन निकालते थे, अगर आपके पास if you have random variable x y and you have some function u v, so do you have this system. So अगर आपको याद हो, हम जैकोबियन कैसे निकालते थे, जैकोबियन was nothing but x का डेरिवेटिव with respect to u, और इधर भी क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव, सेकंड वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और नीचे भी क्या, दिस इज u, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा आपके पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू. So you see, this is Jacobian, right? So if you see now, what is g of u, right? What is g of u v du dv? हमें पता है, अभी हमने लिखा था g of u v du dv was nothing but f of xy dx dy. अगर आपको याद हो, जब आप चेंज ऑफ वेरिएबल्स इंटीग्रेशन में कैलकुलस करते हो, अगर आपको याद हो पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जाते थे तो आप जैकोबियन से मल्टीप्लाई करते थे. तो बेसिकली अगर आपके पास dx dy है, आप dx dy को du dv में कैसे चेंज करते हो, जैकोबियन से मल्टीप्लाई करके, जैकोबियन के मॉड से, और साथ में क्या आ जाता है du dv, जब आप चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं कैलकुलस में, राइट? तो वही चीज हमने करी है, g of uv into du dv किसके इक्वल था, f of xy into dx dy, और dx dy को अगर हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ du dv, तो वो क्या बन जाएगा, जैकोबियन का मॉड इनटू du dv. तो जैकोबियन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, डेल्टा xy over डेल्टा uv. So what will happen, du dv will cancel from both the sides, so what we get, g of uv. So now this result you will remember, so g of uv is equal to f of xy into mod j, where j is what, j is the Jacobian matrix, right, determinant. तो ये कैसे निकलता है, जो आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं x और y, तो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कॉलम, और ऐसे ही सेकंड कॉलम में क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और नीचे क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v. ये फॉर्मूला हमने कब यूज करना है, जब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, राइट? सो ओनली दिस फॉर्मूला विल हेल्प अस. सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला. यहाँ से क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एक क्वेश्चन जैसे पीछे जॉइंट वेरिएबल से बन गया, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से मिल जाता है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स में से. सो इफ यू सी x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट वर्ड अगर आप देखो, यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी, हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस. सो नाउ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, फाइंड द pdf of u where u is x plus y. फाइंड द pdf of u where u is x plus y. अब अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ u गिवन है, यहाँ पे सिर्फ u गिवन है, v is not given to us, so it is given to us u is x plus y. अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, v को अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास v तो है नहीं है, राइट? तो आप देखोगे 6 क्वेश्चंस हैं, थोड़ी थोड़ी टेक्निक लगेगी हर क्वेश्चन में, राइट? तो हम ईज के लिए हमने v को x मान लिया, हमने v को x मान लिया, सही, बिकॉज जितना कॉम्प्लिकेटेड हम v को मानेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. तो हमने क्या किया, v को एक सिंपल फंक्शन मान लिया x का. So u is x plus y, this is given to me, v is x, और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें निकालना है pdf of u, right? Now हमें पता है what is the pdf. So यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, u है, so हमें पता है g of uv कितना होगा, g of uv is what, g of uv is f of xy into the Jacobian, और Jacobian हमें पता है क्या होता है, mod of Jacobian. Jacobian तो आएगा del x by del u
del x by del v और इधर क्या आ जाएगा del y by del u over del y by del v। तो अब अगर देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए तो हमने क्या किया इस रिलेशन से, अगर आप देखो इस रिलेशन से x की वैल्यू कितनी है v, हमने x को इन टर्म्स ऑफ v निकाल लिया, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू v, तो मूवमेंट इस इक्वेशन में हमने x की जगह v पुट कर दिया, तो y कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ uv, u माइनस v। तो दिस इज द रीजन हमने y को सिर्फ x लिया था, आप y को v भी ले सकते हो, तो इससे क्या है इजी हो गया। सो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, y इन टर्म्स ऑफ u माइनस v आ गया। तो लेट अस फाइंड द जैकोबियन। तो जैकोबियन हमें पता है क्या होता है del x by del u। सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, सो इफ यू सी x में तो u है ही नहीं है, x में सिर्फ v है, so derivative will become 0। अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, so x is equal to v, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v is 1। then del y by del u, now if you see y में u आ रहा है एंड del का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कितना हो जाएगा 1। दूसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट मानेंगे तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। then del y by del v कितना हो जाएगा, u का डेरिवेटिव 0 हो गया, v के साथ माइनस साइन है तो -1। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करूंगी सिंस बाहर, सो दिस इज व्हाट -1। अभी हमने मॉड जे हम फॉर्मूले में लेंगे तो हमें पता है जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू भी कितना हो जाएगा, जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू भी इज व्हाट एफ ऑफ एक्स वाई इनटू मॉड जे, राइट। तो मॉड जे तो यहाँ पे कितना हो गया 1 बन गया। अब हमें क्या गिवन है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। हमें पता है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के केस में हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस यूज दैट। सो व्हाट वी गेट, इसको हमने ब्रेक कर दिया f of x into f of y mod j। अब mod j कितना हो गया 1 हो गया, राइट। अब देखो बेटा, सो नाउ वी आर डन, सो नाउ लेट अस डू दिस। सो g of u v कितना हो जाएगा। अब अगर आप देखो हमें क्वेश्चन में सिर्फ हमने यहाँ से g of u v निकाल लिया, वी हैव कैलकुलेटेड g of u v। बट अगर आप देखो क्वेश्चन में v वाज नॉट गिवन, v हमने खुद से लिया था। हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है we want to find the PDF of u। So say suppose we have to find the PDF of u, so say HU। तो अगर हमें पता है, अगर मुझे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो अगर मुझे जिस वेरिएबल का PDF निकालना है मुझे उससे दूसरे वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर देना है। तो मुझे जॉइंट PDF पता है g of u v, मुझे u का PDF निकालना है, तो मैं क्या करूंगी v की लिमिट्स में उसको इंटीग्रेट कर दूंगी। So minus infinity to infinity, because v हम खुद से लाए थे इसलिए हम आंसर वहां नहीं छोड़ सकते, हमें u का पीडीएफ निकालना है और u का पीडीएफ निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है v के साथ, राइट। सो दैट्स इट। सो वी विल नॉट सॉल्व दिस बिकॉज आगे हमें फंक्शंस तो गिवन नहीं है, सो दिस इज द आंसर, राइट। सो हमने ऊपर अगर आपने देखा हो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगेन सिंस हमें इसको फाइनली v के साथ इंटीग्रेट करना है तो x और y तो उसमें है नहीं है, इसलिए जस्ट हमने x और y की जो पहले हमने वैल्यू ऊपर निकाली थी वो इन टर्म्स ऑफ हमने u एंड v लिख दी, बिकॉज अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हमें विद रिस्पेक्ट टू v करनी है ट्रीटिंग u एज कांस्टेंट। सो दिस इज द रीजन x की जगह हमने v पुट कर दिया और y की जगह हमने u माइनस v पुट कर दिया, right। So the same technique will be applicable here also in other questions। So if you see, what about second question? Let us take one more question on this। So the second question says, what will be the distribution of u? Again, we हमें u की निकालनी है। So u is x minus v, u is x minus y। Again u is given, u is x minus y। हमने क्या किया, v को y ले लिया, बिकॉज हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, v को y ले लेंगे तो y उधर चला जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। So you see, we took v as y। तो अगर हम यहाँ से देखें y की वैल्यू तो मिल गई v, ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम y की जगह v पुट करेंगे तो x मिल जाएगा u प्लस v। तो नाउ जैकोबियन यू नो हाउ टू फाइंड, तो इस केस में जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी 1, right। So if you see, now we know what is g of uv, g of uv is f of xy into mod of j, mod of j तो 1 बन गया। तो अगेन f of xy को हम कैसे लिख सकते हैं, we can write this as f of x into f of y because they are independent random variables। So that's it, since हमें इंटीग्रेट करना है तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी u प्लस v और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी v। So that's it। So what will be the PDF of u? PDF of u will be
हम जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे dv के साथ लिमिट्स -∞ to ∞. तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, these functions are also given, we will see in the questions, right? So this is just the technique how we should do. So these are small hints. ऐसे ही अगर हमारे पास u is xy, again if you see u is xy, right, u is xy, तो हमने क्या किया, v को x ले लिया, v को x ले लिया, तो अगेन सेम रीजन, x यहाँ से v हो गया, तो x is v, so x is v, तो जब आप x की जगह v पुट कर दोगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u by v. तो अगेन आपको x और y मिल गए, जैकोबियन निकल जाएगा, सेम वे से वी कैन डू दैट. और ऐसे ही अगर हमारे पास डिवीजन है, so u is x by v, so u is x by v, अगेन v को हमने y ले लिया, जितना इजी फंक्शन लेंगे उतना इजी हो जाएगा. तो जैसे ही v को y लिया, यहाँ से x कितना आ गया, uv आ गया, so x is uv, y is v. So same way we can continue the things और हमारे पास आ जाएगी. ये मैंने थोड़े से वो बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स जो हमने फॉर्मूलेस किए हैं अभी तक, ये जस्ट मैंने इनको कंपाइल किया हुआ है, नथिंग एल्स, फॉर्मूलेस को. That's it. So I'll stop here. अच्छा, एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, if you see here, there is one question. ये क्वेश्चन GNDU में आया हुआ है. So this is nothing, basic probabilities जैसे हमने यूज करी हुई है. Let f of x y be distribution of x and y, distribution function of x and y, then show that probability that x is greater than a to b and y lies between c to d is nothing but f of bd minus f of bc minus f of ad plus f of ac. Right? So ये distribution function था. इसका proof is very easy. A, B, C, D. अगर आपको देखो तो हमने क्या किया, let this is x axis. I'll just give you a hint. Go through the proof. Simple probability के फॉर्मूले याद वो यूज हो रहे हैं. नहीं होगा तो देखो बताना, कल डिस्कस करूंगी. बट ये GNDU में आया हुआ है 2-3 बार. So please go through this question. So if you have any doubt, I will ask tomorrow. I will clear tomorrow. So you see A, B, x is from the range AB, y is from the range CD. So obviously this is the rectangle. So this is the rectangle. So what are the coordinates of rectangle? So this is AC, this is BC, this is BD, this is AD. तो हमें जो required probabilities चाहिए हमने इस rectangle की help से निकाली हुई है. So just go through the proof of this question. जो भी doubt होगा you can ask me tomorrow.